Okay, so today starting with a new chapter which is in relation to the current electricity but does not take into account the electric current effect of the charges flowing inside a conductor, but now explains the magnetic effect which a electric current is capable of producing. इसका पहला इंट्रोडक्शन हम लोग 10th क्लास में देख चुके थे एट द लास्ट वेयर वी स्टडीड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन व्हिच we had studied rules to determine direction of magnetic field around a conductor. Secondly, there was one experiment in which we understood that a electric current is capable of producing a magnetic field around it. To remember what is magnetic field is an area in which a magnetic material experiences magnetic force, may be attractive, may be repulsive. Okay, so जो जहां पर हमने पहली बार देखा था कि मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है एक कंडक्टर से, वो एक्सपेरिमेंट को ओर्स्टेड ने परफॉर्म किया। OERSTED, ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ये क्या था देखते हैं, ठीक है। What was it? What did Oersted do? He took a conductor लिया AB, इसके बाहर से एक्सटर्नली एक हाई वोल्टेज डीसी की बैटरी अप्लाई किया, साथ में लगाए स्विच लगाया ताकि कंट्रोल कर सके, ऑन ऑफ कर सके, स्विच को ओपन क्लोज कर सके। नेक्स्टली he also had a rheostat attached in the circuit में एक rheostat अटैच कर दिया, ठीक है, so that he can vary the amount of current flowing through the conductor AB। अभी यहाँ से करंट ऐसे करके जा रहा है। Now what he did, he brought a magnetic needle near it। यहाँ पर क्या किया उसने, एक मैग्नेटिक नीडल पास में लेकर के आया, नॉर्थ साउथ। When it was far away from the current carrying conductor AB, it showed no deflection। वो अपनी जगह पर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अलाइन था। But what happened when he brought it near to it? When he brought a magnetic needle, example magnetic needle मतलब क्या, छोटा वाला कंपास में एक छोटा सा मैग्नेटिक मटेरियल होता है जो अपने आप को एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अरेंज कर लेता है। उसको जैसे ही पास लाया तो this magnetic needle showed some deflection like this। Okay, one more experiment what he did, he just changed the polarity जैसे ही चेंज किया like this, the magnetic needle showed a deflection in a opposite direction। Okay, और क्या ऑब्जर्व किया, नेक्स्टली what he observed was when he varied the amount of current flowing through it, करंट की वैल्यू बढ़ाया या कम किया, the amount of deflection which the needle showed also changed। With the increase of the current inside the conductor, the deflection's magnitude also increased। With the decrease of the current inside the conductor, this deflection also decreased, मतलब हल्का सा डिफ्लेक्ट हो रहा था। So all these experiments, all these observations of this experiment concluded what all things, क्या क्या कंक्लूड किया, इसको हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला क्या, a current carrying conductor is able to produce a magnetic field around it। ये सबसे पहला हमको क्या बोल सकते हैं, हमको प्रूफ मिला कि करंट कैरिंग कंडक्टर के आजू बाजू क्या प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड। If the magnetic field was not present over here, the needle wouldn't have shown any deflection when brought near it। सबसे पहला चीज क्लियर। नेक्स्ट, the amount of magnetic field which the conductor produces is directly proportional or dependent, we can say, or dependent on the amount of current flowing through it। इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। किससे डिपेंड करता है हमको नहीं पता, बट भाई करंट बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय वेक्टर V ओवर हियर। ओके, नेक्स्ट थिंग, ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थर्ड जो हम ऑब्जर्वेशन यहां से देखते हैं, the magnetic field which is produced
around a current carrying conductor changes with the direction of flow of current. मतलब suppose the magnetic field in this region was something like this, clockwise अगर इसके आजू बाजू घूम रहा था, अभी हम लोग देखेंगे इसके बाद डिटेल करेंगे कि जो एक्सपेरिमेंट था 10th क्लास वाला उसको रिकॉल करेंगे. Suppose the current was going like this, the magnetic field was anti-clockwise over here. Suppose ठीक है, अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये देखो ये करंट का डायरेक्शन है, अगर ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम रही है, मतलब इधर से देखोगे तो ऐसे घूम रही है. What is the direction over here? Anti-clockwise. When the direction of current was changed, or suppose the direction of current was changed, likewise, the magnetic field also changed its direction. अपनी खुद की डायरेक्शन को भी क्या कर लेती है, वो चेंज कर लेती है. ओके, सो B, डायरेक्शन ऑफ B लिख देते हैं. डायरेक्शन of magnetic field depends upon direction of I. ये ऑब्जर्वेशनल पॉइंट्स है, ये नोट्स में नहीं, हमको रिकॉल कर रहे हैं. ठीक है. Yes, now how to determine in which direction the needle which is coming close to a current carrying conductor will be deflected. मतलब एक current carrying conductor के पास अगर मैं एक needle को लेकर के आता हूँ और वो किस डिफ्लेक्ट होती है, तो किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी, ये पता करने के लिए हमको एम्पियर ने एक रूल दिया. दैट रूल इज नोन एज एम्पियर्स स्विमिंग रूल. अब इसमें हिंदी में समझ लो पहले क्या इसका अनुवाद है या मीनिंग है, फिर स्टेटमेंट को पढ़ के मैच करना डिस्क्रिप्शन मैच होता है या नहीं. उसने ये बोला कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर मेरे पास ऐसे है, लाइक दिस, इट इज लाइकवाइज केप्ट एंड द करंट इनसाइड इट इज फ्लोइंग लाइकवाइज. ठीक है, ऐसे करके करंट इसकी तरफ फ्लो है, इसी डायरेक्शन में फ्लो है. और हम ये इमेजिन करते हैं कि एक आदमी तैर रहा है, ठीक है, इसके ऊपर तैर रहा है, इसके अलोंग तैर रहा है, मतलब कंडक्टर के पैरेलल तैर रहा है और उसी के करंट के डायरेक्शन में अगर तैर रहा है, प्लस उसका मुंह हमेशा किधर पे, नॉर्थ तरफ में है. मतलब ये जो नीडल यहाँ पर दिख रही है, देखो यहाँ पर जो शेडेड पार्ट है वो वाला नॉर्थ है और जो अनशेडेड पार्ट है वो वाला साउथ है. तो उसका मुंह नॉर्थ की तरफ है और अपनी हाथ को आगे बढ़ा करके ऐसे तैर रहा है. ठीक है, लाइक दिस ही इज स्विमिंग. तो यहाँ पर देखो ये मेरा मैन है. ठीक है, जितना जरूरत था उतना बनाया हूँ. शकल है, दो हाथ है और दो पैर है ना. डिस्क्रिप्शन कंप्लीट. दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय अस. सो इफ ही इज स्विमिंग लाइक दिस, he is stretching his hands like this in the direction and he is swimming in the direction of the current flow along the length of the wire. Then the needle of the magnetic needle and its north pole will always be shifted, or we can say directed, or we can say moving, will be moved towards the left hand of the swimmer. स्विमर के लेफ्ट हैंड की तरफ जाएगा. तो देखो अगर ये मेरा वायर है ऊपर की तरफ जा रहा है और आदमी यहाँ पर तैर रहा है, देखो ऐसे करके. ठीक है, ऊपर जा रहा है ऐसे करके. ये जो दो फिंगर्स है वो उसकी हाथ को दिखा रहे हैं. तो उसमें से ये वाला कौन सा हो गया, उसका लेफ्ट हैंड हो जाएगा, और ये वाला कौन सा हो जाएगा, ये उसका राइट हैंड हो जाएगा. तो वो ऊपर की तरफ तैर रहा है, करंट ऊपर जा रहा है, तो नीडल किस तरफ मूव करेगी, उसके लेफ्ट हैंड की तरफ. मतलब यहाँ पर अगर नीडल लाया मैं तो ऐसे मूव करेगा इस तरफ. ठीक है, दिस इज व्हाट the Ampere swimming rule states, and its statement is written over here. If a man is swimming along the length of the wire and with the flow of the current with his face, with the flow of the current का मतलब उसी same direction में, with his face always turned towards the magnetic needle, which is over there, then the north pole of the needle will always get deflected towards his left hand. This is what the statement says. Okay, so now we are familiar that a current carrying conductor will produce a magnetic field around it. ठीक है, so that magnetic field, how it is produced, what is its direction, we can know by the help of different rules which we are having. For example, Maxwell's right hand rule that we will discuss later on. Just now we studied Ampere's swimming rule. So that direction can be determined by how it will be experiencing and in which direction. But what will be the magnitude of magnetic field vector B produced at a point
at a distance of r from a conductor. Suppose एक कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है, उसमें से जितना भी करंट फ्लो हो रहा होगा I, उसके टर्म्स में मेरे को पता करना है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है पॉइंट P पर लगेगा वो कितना होगा। ये पता करने के लिए हमको बायोट-सावर्ट्स लॉ समझना है, ठीक है। Now this statement you do not memorize it, you just for memorize the formula, you can write down the statement on your phone, ठीक है। तो what does बायोट-सावर्ट्स लॉ state? सबसे पहले लगा दो क्या, the magnetic field which is produced by a current carrying conductor is directly proportional to कैसे। अब देखो मेरे को नहीं पता इस पूरे करंट एलिमेंट में, मेरे को नहीं पता कितने लेंथ के लिए निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, एक छोटे से लेंथ के लिए निकाल लूंगा, जितना भी लेंथ के लिए मेरे को चाहिए मैं इंटीग्रेट कर दूंगा x से y तक, इफ वी आर सपोज हैविंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और अगर मेरे पास एक फाइनाइट लेंथ दी हुई है तो मैं क्या करूंगा, मैं अगर स्मॉल यूनिट लेंथ dl, इसको हम बोलेंगे करंट एलिमेंट, क्या बोलेंगे, आपसे इसको रिफर करेंगे करंट एलिमेंट बोल के, ठीक है। ये करंट एलिमेंट क्या है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, मेरे को मैग्नीट्यूड पता है I की, इस छोटे से लेंथ dl के लिए अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड पता कर लूंगा इस पॉइंट P के ऊपर कितना लग रहा है, तो मैं इसी को इंटीग्रेट कर दूंगा x से y तक के लिए, मेरे को टोटल मैग्नेटिक फील्ड पड़ जाएगा टोटल लेंथ के कारण P पॉइंट के ऊपर, ठीक है, मैग्नीट्यूड। तो द इफ this small element dl is producing a small magnetic field on the point P placed at a distance r from it dB, then it will be directly proportional to the amount of current flowing through it. What is the first statement? dB will be directly, the magnetic field will be directly proportional to current flowing through it. ये statement का पहला point आ जाता है। Second, the amount of current flowing through the conductor will also decide what is the magnetic field flowing through it, magnetic field produced around it, and the length of the current element will also be depending or will also be deciding what will be the magnetic field on this point P. So the magnetic field produced on point P also depends upon the current element, length of the element which is causing the magnetic field. So directly also proportional to dl. Next, suppose this point P and is located with respect to this current element at a position vector r, मतलब ये पोजीशन वेक्टर मेरे को डिस्टेंस बता रहा है पॉइंट P का, कहां से, dl से, ओके। सो when this position vector is acting at an angle theta with the direction of current in the current element, देखो फिर से बोल रहा हूं, करंट एलिमेंट ऐसा है, ठीक है, और ये पॉइंट यहां पर है, इसके कारण यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो मेरे डायरेक्शन के हिसाब से, मतलब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट यहां पर कैसा है, ऐसा है, आगे जाने के बाद ऐसा हो सकता है, बट मेरे को किसके कारण निकालना है, इस करंट एलिमेंट के कारण। तो ये करंट एलिमेंट का डायरेक्शन और पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड करता है, dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा। थीटा यहां पर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट या करंट एलिमेंट, ओके, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, sin थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin थीटा। एंड लास्टली this magnetic field also follows inverse square law, मतलब क्या, dB is inversely proportional to square of the distance between them, okay, dB is inversely proportional to square of the distance between them, मतलब ये जो पोजीशन वेक्टर है, मतलब यहां से इसका जो दूरी होगा उसके स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता रहता है। तो अब इसको सबको कंबाइन करते हैं, हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, dB will be directly proportional to I dl sin of theta upon r square, ये हमारा स्टेटमेंट बनता है इस सबको कंबाइन करने से, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटता है तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो जाएगा यहाँ पर, तो कांस्टेंट कौन सा होगा, dB इज इक्वल्स टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ पर रेस्ट एवरीथिंग से I dl sin थीटा upon r square. This is my final expression for Biot-Savart's law. The value of mu naught upon 4 pi over here is given by 10 to the power minus 7 Tesla meter per ampere. Tesla
मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू यूनिट होता है, एंड मीटर पर एम्पियर गोज ऑन व्हेन वी डिराइव द एसआई यूनिट फॉर दिस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ओके, मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोग डिराइव करते हैं, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जब हम यूनिट निकालेंगे तब मेरे को टेस्ला मीटर पर एम्पियर मिलेगा। ओके, अंडरस्टूड इस पार्ट?